Assalamualaikum dear student. Today our topic is what is the difference between get character function and gets function, and it is given on the book page 59 on textbook. The get character function is used to read a single character and the gets function is used to read the whole string in DevC program. Now we see their difference by using the program. First, the get character function. This input function is used to read a single character from the keyboard. यानी कीबोर्ड से सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए गेट कैरेक्टर का फंक्शन यूज होता है. कैसे यूज होता है? नाउ वी सी इट्स प्रोग्राम include studio.h, include conyu.h, and here I have written the program main character ch is variable and data type is character is its data type, and ch is variable. Printf enter a single character. This is the printf command and it will display the output on the monitor screen. Enter a single character. And in this program we have not used the scanf. Instead we have used the get character. And now we see that the get character, it will read the character the user have. Suppose the user have entered the x variable. Now this function get character, it will read the character from the keyboard. User have entered the x and it will assign the value of x to the variable ch. So the x will be stored. This x will be stored in the ch by using get character function. And now we will display the value stored in the ch variable. The character u type, this is the string constant, is %d. This is format specifier and this is the ch variable, and it will display the output. The character u type is x. So here in this program we can see that the get character is used to read a single character from the keyboard. Here user is enter x, user can enter a, b, c up to x, y, z, any single character. So the get character read the single character, and in this program it assigns its value to the variable ch of data type character, and this statement print the value of variable ch by, you can see it on the board. Okay, now we see the function of gets function. It is given on page 59 and 60. Get function, it is used to read a string from the keyboard. ये एक स्ट्रिंग को रीड करता है एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल स्पेसिफाइड इन द पैरेंथेसिस, और इसके पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर देते हैं. अब देखें इस प्रोग्राम में यहाँ पे गेट्स फंक्शन हमने यूज किया. नाउ लेट वी सी द प्रोग्राम. फर्स्ट इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conyu.h, मेन. अब यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम नेम है और जिसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है. ठीक है, अब ये वेरिएबल नेम है जिसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है, और इस नेम की जो साइज मेंशन है वो 20 बाइट की, 20 बाइट तक स्ट्रिंग जो है इसके अंदर स्टोर कर सकता है. प्रिंटफ इंटर योर नेम, डिस्प्ले हो जाएगा इंटर योर नेम. अब यूजर ने, फॉर एग्जांपल यूजर ने इंटर कर दिया जिशान अली, एनी स्ट्रिंग. अब देखें इसमें जिशान वर्ड है, बीच में स्पेस भी है, साथ अली भी वर्ड है. अब ये एक स्ट्रिंग है. ठीक है, अब यूजर जो एंटर करेगा वो यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा. बिकॉज गेट्स फंक्शन क्या करता है, इट इज यूज्ड टू रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल स्पेसिफाइड इन द पैरेंथेसिस. अभी उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है जो कि पैरेंथेसिस के अंदर स्पेसिफाइड है. अब इस वेरिएबल के अंदर जाके ये वर्ड जो है ये स्टोर हो जाएगा और इसके अंदर ये आ जाएगा जिशान. आप कोई भी इसमें नेम इंटर कर सकते हैं. प्रिंटफ, अब क्या होगा, अब इस वेरिएबल के अंदर जो डाटा स्टोर है, नेम जो स्ट्रिंग स्टोर है, अब यहाँ पे माई नेम इज %s ये यूज होता है फॉर इट इज प्रिंट स्पेसिफायर, एंड हेयर %s शो दी स्ट्रिंग स्पेसिफायर. ये शो कर रहा है कि अब इसमें जो डाटा है वो स्ट्रिंग है. अब नेम के अंदर जो भी वैल्यू है जिशान अली वो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगी, माई नेम इज जिशान, एंड गेट ch, उसके बाद ये क्लोज देगा.
तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि गेट करेक्टर जो है वो सिंगल करेक्टर को रीड करता है, जिस तरह हमने इससे पहले प्रोग्राम में देखा, और उसको प्रिंट करता है मॉनिटर स्क्रीन पर। और गेट्स फंक्शन जो है वो पूरे स्ट्रिंग को रीड करता है, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा सेंटेंस लिख सकते थे, जिस तरह आई लव पाकिस्तान, ठीक है, या आई बिलोंग टू पंजाब। हम यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग जो है हम यहाँ पर स्टोर कर सकते थे। और वही गेट्स फंक्शन क्या करता है कि उस पूरे स्ट्रिंग को जो उसके पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल गिवन है उसके अंदर स्टोर कर देता है। और इसके लिए मस्ट है कि उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो करेक्टर होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा करेक्टर में स्टोर होता है। और यहाँ पे प्रिंट एफ के साथ जो यहाँ पे प्रिंट स्पेसिफायर जो हम यूज़ कर रहे हैं ये परसेंटेज एस है। यहाँ पे हम परसेंटेज डी यूज़ नहीं कर सकते, और नहीं यहाँ पर हम परसेंटेज एफ और डी को यूज़ नहीं कर सकते, ये फॉल्स होएगा। यहाँ पे हम परसेंटेज एस यूज़ कर रहे हैं, जो कि स्ट्रिंग के लिए, कि इस वेरिएबल का जो इसके अंदर जो डाटा वैल्यू स्टोर हो रही है वो इट्स बिलोंग टू दी स्ट्रिंग। So this is the output, and it is given on page 59 and 60 on the textbook. So you have to prepare to practice this program on your laptop by installing DevC on your laptop or PCs. Any questions or queries you can ask me in proper way. Okay, thank you. Allah Hafiz.